اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک بہترین ہاسپٹل بنوایا جائے گا جس میں خدمت پہلے نمبر پر ہوگی. سر کتنا کوئی کمرے وغیرہ کی اسی بات آئی ہے کہ 500 200 300؟ بھائی بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ، تقریباً 14-15 کروڑ روپے اس میں لگنے والے ہیں. 2 کروڑ تو ہم ترنت دے دیں گے، مارچ کے بعد ترنت مارچ کے بعد دیں گے. مزید بھی امید رکھے مزید بھی امید رکھے یہاں کی ضرورت پڑے گی تو مزید دیں گے. نہیں، بہت بڑا حضرت کا جی بہت بڑا پلان ہے، یا بہت بڑی چیز ہے. یہ حضرت نے یہاں بنوا دیا، بہت کرم ہے حضرت. 6 کٹھا 6 دھر زمین میں نے دی ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں نے یہ بہت بڑی خدمت ہے عوام کی، قوم کی، اور ہم یہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور لوگوں کا یہاں صحیح اور کم قیمت پہ بہت آسانی سے علاج ہو سکے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم لوگ جان مال لگائیں گے. اور امیر سیٹھی صاحب کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ ایسے بیابان میں آ کے انہوں نے اتنا بڑا کام ہاسپٹل کا سنگ بنیاد انہوں نے آج ڈالا ہے. اور لگ بھگ بتا رہے تھے امیر سیٹھی صاحب کی 14 کروڑ کی لاگت سے یہ 15 کروڑ لوگ بتا رہے ہیں جی کہ 15 کروڑ کی لاگت سے اس کو ہونا ہے، جس میں ایم پی ہمارے فیاض صاحب نے 2 کروڑ کا اناؤنس کیا ہے. انہوں نے 2 کروڑ کا اعلان کیا ہے. اور عوامی سطح پر بھی بہت بڑھ چڑھ کے لوگ حصہ لے رہے ہیں. انشاءاللہ ایک اتہاسی ہاسپٹل یہاں بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہاسپٹل بنانے والا ہے. ہاں تو اس میں ہم کو بولے جو مدد، جی ہم سے جو مدد ہوئے گا، سرکاری کوئی اڑچن آئے گا اس میں مدد اور جو سہیوگ ہوگا ہم سب ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. میڈم ابھی سانسد فیاض احمد، ڈاکٹر فیاض احمد نے جسے وہاں پر کہا، اناؤنس کیا ہے کہ ہم 2 کروڑ روپیہ فنڈ سے دیں گے. کیا آپ ایم ایل سی ہیں امبیکا گلاب یادو سے؟ کیا یقین رکھا جائے، امید کیا رکھا جائے؟ ہم سے جو ہوئے گا کریں گے. کیجیے گا آپ بھی، کیجیے گا جی کریں گے. امبیکا گلاب جی ان کو ہے، ان کا پورا روڈ کا یہ ہے کہ اب پورا روڈ یہاں سے وہاں تک MLC مہودے بنا دیں گے. پرمکھ صاحب ہیں، ان کا کام ہے باؤنڈری اگر ہوگا تو وہ کریں گے. اس کے بعد جو مٹی جتنا ہے وہ سب بھرائے گا، سب ہم کریں گے، اپنے اس سے پورا کو کروا دیں گے. کہیں کوئی نہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے لیے گرو کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ بہت بڑی چیز ہونے جا رہا ہے. یہاں ودھایک رہے، سانسد رہے، نہیں سمجھا، کوئی بھی یہاں رہے، لیکن 40-50 سالوں سے آج تک اسپتال نہیں ہوا. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم لوگوں کے لیے یہ بڑا تحفہ مل رہا ہے، نایاب تحفہ ہے. کیا ہے اس کا پورا لاہ عمل، کیا ہے پلاننگ، کیا ہے آپ کا؟ اس کی پلاننگ یہ ہے کہ پہلے تو زمین حاصل کی جائے گی مکمل، اس کے بعد اس کا نقشہ وغیرہ پاس کروایا جائے گا، اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک بہترین ہاسپٹل بنوایا جائے گا جس میں خدمت پہلے نمبر پر ہوگی. سر کتنا کوئی کمرے وغیرہ کی اسی بات آئی ہے کہ 500 200 300؟ بھائی بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ، تقریباً 14-15 کروڑ روپے اس میں لگنے والے ہیں. تو اس لحاظ سے ماشاءاللہ ایم پی صاحب نے ابھی جو ہے وہ 2 کروڑ روپے اس میں سینکشن کیے ہیں، مطلب کہا ہے کہ وہ سینکشن کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں نے یہاں علاقے کمٹ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہم لوگوں کے پاس 2.5 کروڑ روپے کے آس پاس کا فنڈ ہے، تو ہم لوگ اس کو پہلی منزل تک بنا سکتے ہیں. کب سے شروع ہوگا سر؟ انشاءاللہ. کب سے شروع ہوگا یہ تو ہمارے انجینئر صاحب بتائیں گے کہ نقشہ کب پاس ہوتا ہے، اس کے بعد پھر پتہ چلے کب شروع ہوگا. شکریہ سر آپ کا. بارک اللہ صاحب آپ نے 2 کروڑ کا اعلان کیا ہے سر، یہ کیا لگ رہا ہے کب تک امکان ہے؟ 2 کروڑ تو ہم ترنت دے دیں گے، مارچ کے بعد ترنت مارچ کے بعد دیں گے. مزید بھی امید رکھے مزید بھی امید رکھے یہاں کی ضرورت پڑے گی تو مزید دیں گے. نہیں، بہت بڑا حضرت کا جی بہت بڑا پلان ہے، یا بہت بڑی چیز ہے. یہ حضرت نے یہاں بنوا دیا، بہت کرم ہے حضرت کا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. جی انجینئر صاحب پہلے تو اپنے بارے میں بتائیں، آپ تعارف دے دیں. جی میرا نام عمران احمد ہوا. ویسے میں انجینئر بھی ہوں، اور مکان بسوریا ہوا. بسوریا میں جو ہاسپٹل کا قیام ہوا ہے، جس کا ابھی کچھ دیر پہلے ہی سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، علی احمد فیصل رحمانی
वली अहमद फैसल रहमानी साहब जो अमीर शरीयत हैं, उनके हाथों रखा गया है। इसमें ज़मीन आपने दिया है, कितना ज़मीन दिया है आपने? 6 कट्ठा 6 धुर ज़मीन मैंने दी है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने ये बहुत बड़ी खिदमत है आवाम की, कौम की, और हम ये अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले और लोगों का यहाँ सही और कम कीमत पे बहुत आसानी से इलाज हो सके। और जो दूर दराज लोगों को जाना पड़ता है, अब एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है, तो इंशाअल्लाह यहाँ हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको कम खर्च में अब बहुत अच्छा इलाज होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। कामिल साहब, कैसा लग रहा है आपको? जी, बहुत खुशी का मुकाम है कि मधुबनी जिला के बिस्फी के बस बहुत बड़ा समझिए इनाम तोहफा मिला है। एब्सोल्युटली, इससे मतलब खुशी का इजहार बयान नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके का सेहत के मामले में यहाँ पे, और साथ साथ सेहत के साथ साथ सर तालीम पे भी काम किया जाएगा, जो बसवड़िया बिस्फी का मरकज़ कहलाता है। बहुत रूरल एरिया है यहाँ, देहाती इलाका। सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद साहब ने भी 2 करोड़ देने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मजीद भी जरूरत पड़ेगी तो मैं मदद करूंगा। जी बिल्कुल, और वो हर वक्त कोशा रहते हैं मदद के लिए, और यही नतीजा है कि 2 करोड़ एक बड़ी रकम होती है, लेकिन अल्लाह ने नवाजा है और उन्होंने सही जगह पे अपना पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया जी। मैं मोहम्मद शाकिर हुसैन, ग्राम धजवा का निवासी हूँ। जैसा कि अमीर शरीयत ने ऐलान किया है कि जो संग बुनियाद रखा गया है जी हॉस्पिटल के लिए जी, इसमें काफ़ी आपका भी एक अहम किरदार है, रोल है इसमें, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इंशाअल्लाह ताला इसमें हम लोग जान माल लगाएंगे और अमीर शरीफ साहब की बड़ी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे बियाबान में आके उन्होंने इतना बड़ा काम हॉस्पिटल का संग बुनियाद उन्होंने आज डाला है। और लगभग बता रहे थे अमीर शरीफ साहब की 14 करोड़ की लागत से ये 15 करोड़ लोग बता रहे हैं जी कि 15 करोड़ की लागत से इसको होना है, जिसमें MP हमारे फैयाज साहब ने 2 करोड़ का अनाउंस किया है। उन्होंने 2 करोड़ का अनाउंस किया है और अवामी सतह पर भी बहुत बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। इंशाल्लाह एक ऐतिहासिक हॉस्पिटल यहाँ बनेगा इंशाल्लाह ताला। उसमें मुमताज़ आलम उजाले बाबू ने भी 8 कट्ठा ज़मीन दिया है और इमरान साहब ने भी 6 कट्ठा 6 धुर ज़मीन दिया है उन्होंने, और हम लोगों से भी जहाँ तक इतना ताउन होगा इंशाल्लाह ताला करेंगे इंशाल्लाह। ये है कि जो आपका जो हल्का है, बिस्फी जो हल्का है, इसमें काफ़ी लोगों को जो है इससे फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। लोगों को बड़ी तकलीफ थी और दूर दराज जाना पड़ता था इलाज के लिए, और इस इलाके में अगर हॉस्पिटल का काम हो जाएगा तो इससे इस इलाके के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है बिस्फी प्रखंड अंतर्गत खैरी बांका में हाजी तकी हैदर जिलानी साहब के दरवाज़े पर, जो अंबर जिलानी साहब के वालिद मोहतरम हैं, और साथ में अभी हमारे MLC हैं मधुबनी की, और भी यहाँ प्रमुख साहब है, साबिक प्रमुख हैं। हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में मैडम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, अभी कुछ देर पहले इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना उड़ीसा झारखंड के अमीर शरीयत वली अहमद फैसल रहमानी से मुलाकात आपकी हुई है, कुछ देर पहले की बात है। उन्होंने आपको क्या कहा, आपने उनको क्या कहा, ये बताया आप हमारे दर्शकों को। एक हॉस्पिटल बनाने वाला है, हाँ हाँ, तो उसमें हमको बोले जो मदद, जी जी, तो हमसे जो मदद होएगा, सरकारी कोई अड़चन आएगा उसमें मदद, और जो सहयोग होगा हमसे सब हम करने के लिए तैयार है। मैडम, अभी सांसद फैयाज अहमद, डॉक्टर फैयाज अहमद ने जिसे वहां पर कहा, अनाउंस किया है कि हम 2 करोड़ रुपया फंड से देंगे। क्या आप MLC हैं अंबिका गुलाब यादव से, क्या यकीन रखा जाए, उम्मीद क्या रखा जाए? हमसे जो होएगा करेंगे, कीजिएगा, आप भी कीजिएगा जी करेंगे। हाँ। तो आप ये बताएं, अभी आप यहाँ इन्विटेशन पे आए हुए हैं जिलानी साहब के जी, दावत पे आए हुए हैं। हाँ जी, वैसे मित्र भी है, इनवाइट किया, इसके लिए मैं आई हूँ। इसलिए आप आए जी, हैं। जी। तो आप तो शाकाहारी भोजन जी, होगा हाँ, आपका, बस हम मैं लोगों को खा वैष्णव लिया, हूँ। वैष्णव आप जी। हैं। जिलानी साहब, आपका भी इस्तकबाल है हमारे चैनल में। शुक्रिया। आज एक प्रोग्राम हुआ है बसवड़िया में, जहाँ अस्पताल का संग बुनियाद रखा गया है मेरी शरीयत के हाथों। क्या कहना चाहेंगे? आपने मिट्टी भरवाने का शायद वादा किया है, और बताएं। हाँ, इंशाल्लाह पूरा मिट्टी का काम उसमें जो है होगा, भराया जाएगा पूरा, और भी जो काम होगा वो सब कराया जाएगा उसमें,
اور ہم لوگ جو ہے کافی اس میں جو ہے پہلے سے جو ہے چاہ رہے تھے کہ یہاں سہولت نہیں ہے. یہ بہت بڑی پہل ہے حضرت کی, حضرت امیر شریعت کی, کہ جو اتنا بڑا کام یہاں حضرت جو ہے سے تحفہ دے دیے ہم لوگوں کو. اب یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے, ایک دم پورا دن رات لگا کے اس کو ہم لوگ جو ہے کر لیں گے. فی الحال آپ کس طرح کی مدد کا اعلان؟ فی الحال اس میں مٹی جتنا بھرائے گا, اس میں ساری مٹی ہے, روڈ ہے, سب بنانا ہے. بہت مٹی ہوگی, اس سے کیا ہو جائے گا, سب ہوگا. ٹوٹل مٹی بھرائے گا, ٹوٹل روڈ بنے. MLC ہیں امبیکا گلاب جی, ان کو ہے, ان کا پورا روڈ کا یہ ہے کہ اب پورا روڈ یہاں سے وہاں تک MLC مہودے بنا دیں گے. پرمکھ صاحب ہیں, ان کا کام ہے, باؤنڈری اگر ہوگا تو وہ کریں گے. اس کے بعد جو مٹی جتنا ہے وہ سب بھرائے گا, سب ہم کریں گے, اپنے اس سے پورا کو کروا دیں گے. کہیں کوئی نہیں ہے, چونکہ ہم لوگوں کے لیے گرو کی بات ہے, فخر کی بات ہے کہ بہت بڑی چیز ہونے جا رہا ہے. یہاں ودھایک رہے, سانسد رہے, نہیں سمجھا, کوئی بھی یہاں رہے, لیکن 40-50 سالوں سے آج تک اسپتال نہیں ہوا. یہ بہت بڑی بات ہے ہم لوگوں کے لیے, یہ بڑا تحفہ مل رہا ہے, نیاب تحفہ ہے. یہ تو بڑی مقدر کی بات ہے کہ آج آپ کے دروازے پہ جو دولت خانہ آپ کا ہے, دیکھ رہے ہیں درجنوں کی تعداد میں مہمان ہیں, ساتھ میں امیر شریعت بھی موجود ہیں. کافی مقدر والے آپ ہیں کہ آج ان کی خدمت کا ہی موقع ملا آپ کو. اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ جی نہیں, ہم بہت, اللہ کا بڑا احسان ہے اس مالک کا کہ حضرت آئے اور حضرت کہے کہ نہیں کھانا امبر بابو کے یہاں ہی کھانا ہے وہیں, اور حضرت آئے کہ نہیں ایک دم وہی کھانا کھائیں گے. یہ میرے لیے بڑی گرو کی بات ہے, ہم کو بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے, شکریہ. حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات ایک قیمتی کام کے لیے اپنا بے قیمتی وقت نکال کر ہمیں اپنے دیدار اور اپنی بلا قدر مواعظ سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ تمام حضرات کو بہتر بنائے اور ہاسپٹل کی تعمیر اور اس کے تمام مرحلوں کو آسان بنائے. آمین. ہاسپٹل کے سنگ بنیاد کے اس مرحلے کے لیے آپ جمع ہیں. حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ خود ہی اس تعلق سے کچھ ارشاد فرما کر دعا فرمائیں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. اس سلسلے میں ظاہر ہاسپٹل کی ضرورت انسان کے لیے کس قدر زیادہ ہے ہم اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بیماریاں کس تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور انسانی جسم کس قدر کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. ظاہر برداشت کمزور ہو اور بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہر بلاک اور پنچایت میں علاقے کے گوشے گوشے میں پنچایت میں یہ ہاسپٹل قائم ہوں. لیکن یہ پورا علاقہ اور پوری آبادی الحمدللہ پڑھی لکھی تعلیم یافتہ آبادی ہے, لیکن ہاسپٹل کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آج اس کا انتظام کیا. بہتر انسان وہی ہوتا جو دوسروں کو نفع پہنچا سکے. تمہارے شریعہ نے تعلیم کے میدان میں, صحت کے میدان میں, تمام میدانوں میں کام کیا ہے اور کر رہی ہے, اور اسی کا تسلسل ہے یہ جو ہاسپٹل کا یہاں قیام ہے. اسلام کا یہ پیغام ہے کہ انہیں ہر میدان میں کام کرنا چاہیے. طب و صحت کے میدان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شریعہ نے, ہم لوگوں نے کم کام کیا ہے لیکن اس کا آغاز کیا جا رہا ہے. دعا فرمائیں کہ اس طرح سے بہار, جھارکھنڈ, اڑیسہ اور بنگال کے مختلف علاقوں میں
हमारा शरिया ज़्यादा हॉस्पिटल कायम कर सके, उसी कोशिश की तरफ हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहू आलिया तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी जमशेदपुर हॉस्पिटल का क़याम का मरहला भी चल रहा है और भी कई जगहों पर बात चल रही है। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला आज के इस बुनियाद के इस इजलास को कबूल फरमाए और आप हज़रात की तरफ से जो अजीम ताउन है और आप हज़रात की तरफ से जो हौसला मिल रहा है, इससे अंदाजा ये है कि हम लोग मजीद आगे बढ़ सकेंगे और जल्द अज जल्द पाए तकमील तक इस हॉस्पिटल की तामीर को पहुंचा सकेंगे। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सबको इसमें कामयाबी अता फरमाए और मिल्लत के लिए सेहत के मैदान में एक बड़ा कदम हो और अल्लाह ताला इससे हम सबको फायदा पहुंचाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमाइन। अम्मा बाद, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो शुक्र है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, जिसने हमारी तरफ अपनी किताब को भेजा, अपनी किताब नाज़िल फरमाई, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया कि मर्ज़ जब आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे शिफा देता है। अल्लाह का एहसान है कि उसने हमारी तरफ अपने रसूल को भेजा, जिन्होंने हमें बताया कि तमाम दुखों के लिए, तमाम मर्ज के लिए अल्लाह ने दवा भी भेजी है। और अल्लाह का एहसान है कि हम लोग ऐसी मजलिस में बैठे हुए हैं जहां अल्लाह ने लोगों को तौफीक दी, जिन्होंने वो ख्वाब देखा, और ये वो आप लोग हैं जिन्होंने ख्वाब देखा कि यहाँ एक हॉस्पिटल बनाया जाए जिससे इंसानों को नफ़ा हो। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना के बाद ये ज़रूरी है कि इंसानों का भी शुक्र किया जाए, क्योंकि जिसने इंसानों का शुक्र नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्र नहीं किया। मैं चंद नाम आपके सामने लेना चाहता हूँ और आपको ये देखना चाहिए कि इनके ऐसा करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हें क्या अज्र अज़ीम अता फरमाएंगे। इस पर गौर कीजिए और फिर देखिए कि इनके साथ आखिरत में क्या मामला होगा, वो आपको सोचना है। नाम मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। जनाब इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब, जिन्होंने यहाँ पर 6 कट्ठा 6 दुर ज़मीन दी और जिनकी तहरीक पर यह सब चीज़ चली है। मोहम्मद मुमताज़ और पुजाले साहब, जिन्होंने फिर 8 कट्ठे ज़मीन उसमें जोड़ दी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जनाब आस मोहम्मद साहब, जिन्होंने ये कहा कि इसमें 30 लाख रुपए वो देंगे, यानी काम शुरू उस पैसे से किया जा सकेगा। और ये भी बता दूं कि आप तमाम लोगों ने तकरीबन 20 लाख रुपए जमा करा दिए हैं इसके, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो रकम है बची। और फिर जनाब अंबर जिलानी साहब, जिन्होंने ये कहा कि इसमें मिट्टी भराने का काम वो करवाएंगे इंशाअल्लाह इस पूरे ज़मीन पर। और जनाब फैयाज साहब ने तो आपके सामने भी कहा कि MP फंड से वो 2 करोड़ रुपए पहली मंजिल में देंगे। इनके अलावा जिन लोगों ने मुकम्मल मुआवनत का वादा किया है, उनमें जनाब नासिर हुसैन साहब हैं, मोहम्मद शाकिर हुसैन साहब और अबू मुखिया साहब हैं, तारिक मिनहाज साहब हैं, शफी आजम साहब हैं और इम्तियाज साहब हैं। अल्लाह तबारक तआला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। क्या आप जानते हैं कि चंद महीने पहले हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहू, जो एक इल्म दोस्त और इल्म फैलाने वाले सच्चे इंसान की हैसियत से दुनिया में जाने जाते हैं, आपने इमारत शरिया की क़यादत जैसे ही संभाली, इमारत शरिया को एक नए रुख पर, जिसकी मिल्लत को जरूरत थी, तालीम की, सेहत की, इस एतबार से भी लाने की आपने कोशिश की। उसी का नतीजा हुआ कि चंद महीना पहले आप एक तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में यहाँ तशरीफ लाए थे। उस मौके से आपने इनका पैगाम इस इलाके के लोगों को दिया। उसी मौके से जनाब इंजीनियर इमरान साहब ने अपनी जमीन 5 कट्ठा हॉस्पिटल के लिए और 1 कट्ठा 6 दूर रास्ते के लिए, यानी 6 कट्ठा 6 दूर जमीन की रजिस्ट्री की कि यहाँ इमारत शरिया का हॉस्पिटल बने। हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहू से हम लोगों ने गुजारिश की कि हजरत इस पर बुनियाद डाल दें। हजरत साहब ने अपनी फिक्र के मुताबिक फरमाया कि मौलाना जहाँ काम करें वहाँ जमीन का एक बड़ा रकबा हो, ताकि हॉस्पिटल के साथ स्कूल और कॉलेज और दूसरे फलाही कामों को भी बाद में हम अंजाम दे सकें। जमीन वहाँ फैलाई जाए। जमीन के फैलाने के लिए
कोशिशें जारी हैं और इसमें कामयाबी भी मिल रही है। जैसे अभी फौरी तरीके से जनाब मुमताज साहब उजाला, उन्होंने 8 कट्ठा जमीन इस प्लॉट से हटकर दूर दिया, दूरी की जमीन थी, उसका बदलाव भी हुआ और बगल में एक साहब ने अपनी जमीन उसके एवज में हॉस्पिटल को देने के लिए रजामंदी जाहिर की। जनाब इंजीनियर इमरान साहब और पूरे इलाके की टीम इस बात में लगी हुई है कि यहाँ 2-3 एकड़ जमीन हासिल हो जाए ताकि हजरत का जो इरादा है उस इरादे के मुताबिक काम हो। हजरत से जब मैंने गुजारिश की कि इलाके के लोगों की ख्वाहिश है, वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल की बुनियाद पर जाए, मैं आपको वाज़ेह बता दूं, हमारे और मौलाना एजाज साहब काज़ी शरीयत दामत बरकातुहुम की गुजारिश पर हजरत ने आज आने को कबूल कर लिया कि ठीक है बुनियाद पड़ेगी, लेकिन जब तक नक्शे की सरकारी मंजूरी नहीं होगी उस वक्त तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। इस सिलसिले में चेयरमैन मधुबनी मेडिकल कॉलेज और MP राज्यसभा आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। इस हल्के को आपने बहुत संवारा है, बहुत बनाया है। हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम और मजमे के सामने आपकी बातें ऐसी हों जिससे हौसला हम सबका बढ़े कि हॉस्पिटल का तामीरी काम कैसे आसान हो सकेगा और आपका इसमें क्या ताउन रहेगा, वो भी आपके जरिए से लोग सुनना चाहते हैं। जनाब भाई फैयाज अहमद साहब। आज हॉस्पिटल के इस इफ्ताही प्रोग्राम में अमीर शरीयत नायब अमीर शरीयत, हमारे उलमाए किराम, सामीन में मौजूद हमारे बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम बहुत ही अहम प्रोग्राम है और चूंकि हजरत अमीर शरीयत चाहते हैं कि अच्छा काम हो, तालीमी हो, सेहत का हो, इसी का एक पहला कदम है और हम समझते हैं कि इस इलाके में इसकी बहुत जरूरत थी। हम भी इस बात को समझ रहे थे, इसलिए हम एक मरतबा कुछ प्रोग्राम चलाए, लेकिन डॉक्टर नहीं आ पा रहे थे, इसलिए हमको फिर उस प्रोग्राम को बंद करना पड़ा। तो यहाँ हजरत से गुफ्तगू हो रही थी कि हॉस्पिटल के साथ साथ डॉक्टरों के आला रिहाइश का इंतजाम भी करना पड़ेगा, तभी यहाँ डॉक्टर रह पाएगा, नहीं तो आएंगे 2-4 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। जब हम लोगों को इससे जूझना पड़ रहा है तो यहाँ तो ज्यादा जूझना पड़ेगा। एक देहाती इलाका है, ये सेहत के इसमें हॉस्पिटल का काम एक बहुत बड़ा काम है। हम लोग आज इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। मौलाना समीर साहब ने कहा कि तो हम इसमें 2 करोड़ रुपया अपने फंड से 22-23 में हम देंगे। जो क्योंकि हमारा खारिज होगा तो कोई एक आइटम इससे बनाना पड़ेगा, अगर इसमें और आगे पीछे भी रकम होगी तो भी हम फराहम करा देंगे इंशाअल्लाह। और सब लोग क्योंकि तहरीक, तालीमी तहरीक चलाइए, बच्चे हमारे स्कूल से जुड़े, तालीम गाह से जुड़े, इस कैसे होगा उस पर ख्याल करना, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है दीनी तालीम भी हो, लेकिन उसके साथ साथ असली तालीम भी हो, क्योंकि हम अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है। इसमें पूरा हर तबके से, हर एरिया से डिस्कशन चल रहा है, दौर बहुत चल रहा है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। हजरत से भी गुफ्तगू हो रही थी, हजरत ने बताया कुछ अच्छी बात भी है और कुछ खराब बात भी है। तो कुछ भी हो, लेकिन हमको तो फिट करना है उस एजुकेशन पॉलिसी में। अभी हमने उस कमेटी में देखा, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी उसमें हम भी, तो देखा लोग कह रहे थे कि सबसे पिछड़ा हुआ मुसलमान अल्पसंख्यक ही है, हरजन से भी ज्यादा। हम कहा कि तो फातमी साहब जब मिनिस्टर थे उस वक्त में कमेटी बनी थी, वो कमेटी भी कही थी कि सबसे पिछड़ा हुआ अगर हरजन SC/ST से भी पिछड़ा हुआ है तालीम के बदले में तो मुसलमान है। तो बहुत इस पर गौर फौज चल रहा है। तो जो सब लोग कह रहे हैं कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, जबकि हमारा तालीम हासिल करना तो सुन्नत है, तो हम लोग अपने बच्चों को तालीम की तरफ दे। हम कई जगह चुनाव के मरहले में जाने का मौका मिला, अपने बरादरी के गांव में, मुख्तलिफ जगह पर,
हमने लोगों को कहा कि देखिए हम लोग तो गोश्त के बगैर नहीं रह सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 7 दिन होता है, 4 दिन गोश्त खाएं या 3 दिन वो गोश्त का पैसा नौनिहाल के पीछे लगाए तालीम के लिए। तो हमारा वही गुजारिश होगा कि तालीम पर बच्चों को दे, और ये हजरत का एक बहुत बड़ा काम है। हजरत के लिए सब लोग मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हजरत से ऐसा ही अच्छा काम पूरे बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब में कराता रहे। तो चूंकि बहुत मुख्तसर प्रोग्राम है, यही हम इजाजत लेना चाहेंगे। खुदा हाफिज़, जय हिंद। दिल की हल्का दिल की गहराइयों से हज़रत अमीर शरीयत मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब, अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा व झारखंड, व सज्जादा नसरी खानका रहमानी मुंगेर, हज़रत मौलाना मोहम्मद शमसाद रहमानी साहब, नायब अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा व झारखंड, हज़रत मौलाना शिबली अल कासमी साहब, कायम मुकाम नाज़िम इमारत शरिया, हज़रत मौलाना मोहम्मद अंजार आलम साहब कासमी, कादी शरीयत मरकजी दारुल क़ज़ा इमारत शरिया, और हज़रत मौलाना सुहेल अहमद नदवी साहब नाज़िम इमारत शरिया का खैर मक़दम करते हैं। और बावक़ार व माज़ूद मेहमानों के लिए इस्तक़बाल के जो सबसे बेहतर कलमात हो सकते हैं वो हम आपकी आली जनाब में पेश करते हैं। मखदूम गिरामी हज़रत अमीर शरीयत, आपने एक बड़े हल्का की परेशानी, बीमारियां और दर्द दूर करने की गर्ज से यहाँ हॉस्पिटल के क़याम का लायक सद तहसीन फैसला हुआ। इसके लिए आप और आपकी पूरी टीम मुबारकबादी की मुस्तहिक है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके कर्ब और मुश्किलों को दुनिया व आखिरत में दूर करे और अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। हम आपको पूरे इलाके की जानिब से यकीन दिलाते हैं कि हम सब आपके साथ सदा खड़े नजर आएंगे और आपके हर हुक्म की इत्तबा करेंगे, और इमारत शरिया की जड़ों को मजबूत करने के लिए हर हाल में तैयार हैं। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हॉस्पिटल तामीर के सारे मरहलों को आसान बनाए और हमारे कदमों में सबात और दिलों में इखलास पैदा करे। वस्सलाम।